ہے جی جی یہاں پر ایک بار نیچے کو لگا کے ریفریش کرو. ریفریش کیا ہیلو سبھی سننے والے لوگوں کو میرا نمستے، آداب، گڈ ایوننگ. ساتھیوں، یہ ساجی دنیا کی پہلی لائیو فیس بک لائیو ہے، اور اس لیے مجھے یہ ذمہ داری میری ٹیم نے دی کہ میں اس کی شروعات کرا دوں، ورنہ ہماری جو کم عمر ٹیم ہے اب وہی سب کچھ کرتی ہے، پریچے دینا، مہمانوں کے بارے میں بتانا اور پورا کنڈکٹ کرنا. لیکن آج یہ پہلی ہونے کے ناطے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو سننے والے لوگوں کو میرا نمستے، آداب، گڈ ایوننگ. ساتھیوں، یہ ساجد تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے کوی ہیں، پوئٹ ہیں دیش کے، جو اپنی عمر کے ہر دور کے ساتھ قدم تال ملاتے ہوئے چلے ہیں. کوئی دور ایسا نہیں رہا جبکہ جنتا کی دکھ درد کی آواز ان کی آواز نہ بنی ہو. گوہر رضا آج ہمارے ساتھ ہیں، اور گوہر رضا ان کویوں میں سے ہیں ہمارے دیش کے جو ہیں تو ویگیانک، اور ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو ویگیانک ہوتے ہیں وہ بڑی ایسی بھاشا میں بولتے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کا گیان کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں تک ہمارا پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اور زیادہ تر میں ایسا نہیں کہتی کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ویگانک کھوجوں میں شاید اتنا مصروف رہتے ہیں کہ جنتا کے جو سماجک درد ہیں، ان کی جو راجنیتک استھتیوں سے جو بدلے حالات ہیں جن میں ان کی تکلیفیں گھٹتی یا بڑھتی ہیں، ان کے سکھ درد پر سوچنے کا کام ویگانک کچھ کم ہی کر پاتے ہیں. ہمیں شکایت نہیں ہے، کیونکہ ویگانک اپنا دوسرا کام بھی بہت مہتوپورن کرتے رہتے ہیں. پر گوہر ایک ایسے ویگانک ہیں جو نہ صرف ویگانک ہیں، گیان کے نئے آیاموں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، بلکہ ایسے ویگانک ہیں جو وگیان کو جنتا کے انتم انسان تک، آخری انسان تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور کہیں پھر وہ جنتا کے انتم جو انسان ہے، جو ہمارے سماج کا لاسٹ پرسن ہے، اس کے گیان اور اس کی تکلیفوں اور اس کے سکھ سے وگیان جڑ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ہر گیان کی اصلی جو کلمینیشن ہے، آئیڈیل کلمینیشن ہے، وہ یہی ہوتا ہے جس میں گوہر نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. مجھے نہیں لگتا یہاں وہ لوگ ہوں گے جنہیں گوہر کا پریچے چاہیے ہوگا.
لیکن میں بہت شور بھی نہیں ہوں کہ ایسے کچھ لوگ نہیں ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا تفصیل میں تو بالکل نہیں، کیونکہ تفصیل میں بتانے میں بہت وقت جائے گا، ہم زیادہ وقت گوہر کو دینا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ابھی میں نے ان کے ویگیانک ہونے کی بات بتائی، تو میں ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گوہر اپنی جوان عمر سے ہی سڑکوں پر آندولنوں میں بھی رہے ہیں۔ کون سے آندولن؟ وہ جو کہ جنتا کی آواز کو اٹھاتے ہیں، جنتا کی مجبوریوں کو دیش کے سامنے لانے کا کام کرتے ہیں اور ان کو نظموں میں ڈھالتے ہیں۔ وہ پورے نظام پر کامنٹری بھی کرتے ہیں اپنی نظموں سے، اور ان کو شرمندہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نصیحت بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، آج کے ہی دور میں نہیں، بہت پرانے دور میں۔ ہم آگے ابھی تھوڑی دیر جب بھی ان کو وقت ہوگا آج کی اس میٹنگ میں ایک کویتا سنیں گے جو بہت پہلے انہوں نے لکھی تھی، جس میں ہے کہ بھئی جو حاکم وقت ہے وہ ہم سے فرمان یہ کرتا ہے کہ اپنی عزت خیرت سب کچھ تم بیچ دو ہمارے نام، لیکن ہمیں یہ سودا منظور نہیں۔ یہ والی نظم میں نے تو پروز میں بتا دی آپ کو، اور گوہر آپ کو کویتا میں بتائیں گے، تو ایک جائزہ لینے کو ہے کہ یہ کبھی کیسا کبھی ہے۔ اور بہت چھوٹے میں بتاؤں، جہانگیرہ آباد انسٹیٹیوٹ جو ہمارے لکھنؤ کے بہت پاس ہے، اس میں میڈیا انسٹیٹیوٹ جب بنی تھی اس میں آپ نے کئی سال ڈائریکٹر کا بھی کام کیا، اور آپ دیش کے ہر آندولن کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ نے 2 فلمیں بھی بنائی ہیں جو بہت اپریشیٹ ہوئی ہیں، بھگت سنگھ پر انقلاب اور جنگ آزادی، اور ایک فلم سلام انڈیا میں آپ نے اپنی لیرکس دیے ہیں، اور وگیان کو اس کی ہی زبان میں سمجھانے کی بھی ایک لگاتار سیریز آپ کر رہے ہیں۔ آپ سڑکوں پہ ان کو بہت بار دیکھ سکتے ہیں، اور بقول ہر وقت کے شاسک کے بقول آپ جھولا چھاپ سڑک کے آندولن جیوی آج کے جملے میں آندولن جیوی ہیں، اور مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اور میرے ساتھی دنیا کے اور گوہر، ہم لوگ بہت بار ایک ہی سڑک پر ایک ساتھ کوٹ ان کوٹ آندولن جیوی رہے ہیں، اور اب تو خوشی ہے کہ آندولن جیوی جو شبد ہے اس کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا انہوں نے بھی اس کو سویکارا ہے، تو اس کی عزت تھوڑی سی واپس آئی لگتی ہے۔ تو میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گی گوہر صاحب، ابھی تو میں یہ کہوں گی کہ میں بہت آپ کے اور سامعین کے بیچ میں آ رہی ہوں، آپ 2-3 نظمیں تو اپنی اچھا سے سنا دیجیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ کی اچھا پہ ہم فرمائش کریں اور آگے بولیں گے اور اس پہ کچھ بات بھی کریں گے۔ گوہر رضا اپنی نظموں کے ساتھ۔ بے حد شکریہ روپ ریکھا جی، یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم لگاتار ایک ساتھ سڑکوں پر رہے ہیں، اور جو کچھ اس بیچ میں کہا گیا پارلیمنٹ میں کہ اس دیش کے اندر آندولن جیوی موجود ہیں، تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ تمغہ دیا جا رہا ہے۔ ان کی جو گالیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے ایک تمغے کا کام کرتی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کارگر ہیں، ہم کہیں نہ کہیں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، جو ہم کو اس طرح کے تمغے مل رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس بیچ میں، اور خاص طور سے سی اے کے موومنٹ کے بعد اور اب کسان موومنٹ کے دوران، اس دیش نے بڑی خوبصورت نظمیں اور کویتائیں دیکھی ہیں۔ اس بیچ میں ایسا لگا مجھے کہ آزادی کا آندولن کا دور شاید پھر سے لوٹ آیا اور نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں
जो क्रिएटिविटी की ऊंचाइयों को, हदों को छू रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत शायरी और अदब एक बार फिर से पैदा हुआ, जिसने हम जैसे बूढ़े लोगों को एक नई जिंदगी बख्श दी। हम लोग काम करते रहते थे और अक्सर 50-60 वही चेहरे, जिनको आंदोलन जी भी कहा जा सकता था, दिखाई देते थे। आप होती थी, मैं होता था, और इसी तरह के लोग होते थे। लेकिन इस बीच में जब एक जेएनयू के प्रोफेसर ने कहा, मेरे बराबर में खड़े हुए थे एजुकेशन में, कि भाई वो पैम्फलेट कहाँ है, बट नहीं रहा। तो मैंने कहा बच्चे बांट रहे हैं, और इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज हम बूढ़े नहीं बांट रहे हैं। तो ये देश उठ खड़ा हुआ, और इसी तरह से कविता भी उठ खड़ी हुई है। इसके लिए हमें नई नस्ल को बेहद मुबारकबाद देनी चाहिए। आपने मेरी बहुत सारी तारीफें कर दी, जिनके बिल्कुल भी मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हम में से हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जिस फील्ड में भी हम हैं, उस फील्ड में करनी चाहिए। तो एक गजल लिखी थी, और उस गजल को मैंने जब एक मुशायरे में पढ़ा, तो सभी मेरे दोस्त ये जानते हैं कि उसके ऊपर बड़ा अताब नाजिल हुआ। वो कुछ इस तरह थी कि धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी, मसली कलियां झुलसा गुलशन, सर्द खिजां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। ये गजल थी। इसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। तो इसके ऊपर 2 नज़में मैंने लिखी थी, जो कुछ बाद में हुआ उसको लेकर के। और अगर आपको याद हो तो हमारे एक बहुत बड़े फनकार और बहुत बड़े साउथ इंडिया के कवि और लेखक ने ये कहा था कि मेरा कलम सूख गया है, अब मैं नहीं लिखूंगा। ये अलग बात है कि उन्होंने बाद में लिखना शुरू कर दिया। तो ये नज्म खामोशी। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर डाला। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर डाला है। लो आंखें मैंने बंद कर ली, लो परचम सारे बांध लिए। नारों को गले में घोट दिया, एहसास के ताने बाने को फिर मैंने हवाले दार किया।
اس دل کی کسک کو مان لیا ایک آخری بوسہ دینا ہے. اس دل کی کسک کو مان لیا ایک آخری بوسہ دینا ہے اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے خنجر کے حوالے کرنا ہے. لو میں نے قلم کو دھو ڈالا، لو میری زباں پر تالا ہے. الزام یہ آیت تھا مجھ پر، الزام یہ آیت تھا مجھ پر، ہر لفظ میرا ایک نشتر ہے. جو کچھ بھی لکھا، جو کچھ بھی کہا، وہ دیش ورودھی ٹھہرا کر حکم کیا تھا یہ صادق. تہذیب کے اس گہوارے کو جو میری نظر سے دیکھے گا وہ ایک ملزم کہلائے. جو میری نظر سے دیکھے گا وہ ایک ملزم کہلائے گا. لو میں نے قلم کو دھو ڈالا، لو میری زباں پر تالا ہے. جو عشق کے نغمے گائے گا، جو پیار کی بانی بولے گا، جو بات کہے گا گھٹوں میں، جو آگ بجھانے اٹھے گا، جو ہاتھ چھٹکتے قاتل کا، وہ ایک مجرم کہلائے گا. لو میں نے قلم کو دھو ڈالا، لو میری زباں پر تالا. خاموش ہوں میں، سناٹا ہے. خاموش ہوں میں، سناٹا ہے. کیوں سہمے سہمے لگتے ہو، ہر ایک زباں پر تالا ہے. کیوں سہمے سہمے لگتے ہو. لو میں نے قلم کو دھو ڈالا، لو میری زباں پر تالا ہے. ہاں سناٹے کی گونج سنو، ہاں سناٹے کی گونج سنو. ہیں لفظ وہی، انداز وہی، ہر ظالم جابر ہر قاتل اس سناٹے کی زد پر ہے. خاموشی کو خاموش کرو، یہ بات تمہارے بس میں نہیں. خاموشی کو خاموش کرو، یہ بات تمہارے بس میں نہیں. خاموشی تو خاموشی ہے، گر پھیل گئی تو پھیل گئی. خاموشی تو خاموشی ہے، گر پھیل گئی تو پھیل گئی. اس میں کچھ پریشانی آ رہی ہے کمپیوٹر میں. ویڈیو نیٹ آڈیو ورک ہے، کون سے آئے؟ آپ کے یہاں نیٹ ورک ٹھیک چل رہا ہے کیا؟ بات شافظ کے سر آپ کی آڈیو ٹھیک آ رہی ہے، بس ویڈیو رک گئی ہے. شاید آپ کی طرف نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. میں ایک بار روک کر کے ویڈیو دوبارہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں. جی نیٹ ورک تو ٹھیک ہی ہے لیکن یہ ویڈیو اٹکا ہوا ہے. جی ویڈیو اٹکا ہے. آپ کیا مہربانی سے اپنی نظم سنائیں گے، زرد پتوں کا بند؟ میں ضرور سنا دیتا ہوں، میں جی ضرور سنا دیتا ہوں. یہ مصرے پتہ نہیں میں نے فیض احمد فیض سے چرائے یا انہوں نے میرے چرائے. بہرحال آپ ہی نے اس میں تو لے ہیں. جی اب فیض صاحب پہلے تھے تو شاید وہ مجھ سے پہلے کہہ گئے. انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خوبصورت نظم لکھی تھی، اپنی پوری شاعری کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا انہوں نے. میں باہر نکل کے ایک بار پھر سے جوائن کروں کیا؟ تو جی شاید جی کر لیجئے. سبھی سننے والوں سے معافی چاہتی ہوں، تھوڑا نیٹ ورک کی ابھی 1-1.5 منٹ میں ہی ٹھیک شاید ہو جائے گا. پر یہ تو آ ہی نہیں رہا ہے. اچھا گوہر صاحب، جی آواز تو آپ کی آ ہی رہی ہے، جی آواز تو آپ کی آ ہی رہی ہے، تو سنائی تو دے ہی رہا ہے. پتہ نہیں اب دیکھیے یہ چیزیں ہم لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، نیٹ ورک وغیرہ. جی تو کیا کریں، معافی بھی ان کے بہاف پہ مانگ رہے ہیں. ہاں میرے خیال میں مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں باہر نکل کے پھر واپس لوٹوں گا تو لنک بدل جائے گا. نہیں سر، آپ وہی لنک لے کر کے آ جائیے. وہی لنک لے کر کے آ جاؤں. جی سر، جی سر. ٹھیک ہے. باہر جا کے آئیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز کافی ہے تو
कुछ ऐसा लग रहा है मेरी ही तरफ प्रॉब्लम है। आपकी आवाज आ रही है और सुनने वाले भी कह रहे हैं कि आवाज काफी है, तो आप मैं जारी रखता हूँ। जी जी। जर्द पत्तों का बन, फैज जी। साहब से ये 2 मिसरे मैंने लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत, जैसा मैं कह रहा था, नज्म लिखी थी। इंतसाब था उसके शुरू की चंद लाइनों में है ये 2 मिसरे। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। नज्म पेश है जर्द पत्तों का बन। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिजा की डगर। बस वही देश है जर्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश तक खिजा की कोई रहगुजर ही नहीं। इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे, अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुकसी गई। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुकसी गई। खंजरों की सभा रक्त करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गई। कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जाममीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं। किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गई, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है। ऐ मेरे हमनशी, जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। ऐ मेरे हमनशी, जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। चांद कितना भी जुल्मत के घेरे में हो, अब भी हर शब निकलता है वहां। ये भी सच है कि उस फैज के देश में चांद कितना भी जुल्मत के घेरे में हो, अब भी हर शब निकलता है। बाबजोला सही फिर भी सच है यही, जिंदगी अब भी रक्सा है उस देश में। कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं। और मेरे देश में चांद मध्यम सही, रात लंबी सही, फिर भी सच है यही। खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी। रन पड़ेगा बहारों खिजाओं का जब, रन पड़ेगा खिजाओं बहारों का जंग। रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी, जर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी। बहुत ही अच्छी आपकी नज्म गौहर साहब, इसमें इतनी आशा है, देश के लिए इतना प्यार है, जनता में इतना भरोसा है, और ये कि पतझड़ पर बहार ही जीतेगी, रंग की बहार ही। ये बहुत बहुत सुंदर नज्म आपकी, ये देश के प्रति लगाव का एक नया रूप और नए तरीके से आपने बयां किया है। कुछ और पेश करें। बेहद शुक्रिया। ताज़ी नज़मों में से एक नज़्म है जो दोस्तों ने सुनी होगी, एक बार फिर सुन लें। जो हालात मुल्क में डेवलप हुए, और ख़ास तौर से जब हमारे
दोस्त को ये कहा कोर्ट ने कि भाई हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाने जा रहे हैं, तो ये नज्म लिखी थी, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, मैंने इस दौरे ज़बाबंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है, जुर्म की जो चाहे सजा दे मुझको। आप हैं ज़िल्ल इलाही माय लॉर्ड, आप हैं ज़िल्ल इलाही माय लॉर्ड, आपका काम है इंसाफ, तो इंसाफ करें। आप आज़ाद हैं, इंसाफ को जो चाहे शक्ल दें मंजूर, आप आज़ाद हैं, इंसाफ को जो चाहे शक्ल दें मंजूर, आप आज़ाद हैं, इंसाफ को बदला कर दें, आप आज़ाद हैं, इंसाफ को बदला कर दें, आप आज़ाद हैं, इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड, आप इंसाफ के खंजर से हर एक उंगली को काट कर फेंक, काटें तो कुछ ऐसे काटें कोई उंगली किसी हाकिम पे कभी उठ न सके। आप आज़ाद हैं, इंसाफ को एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कोई गर, उसको सजा दें जैसे कोई स्कूल के बच्चों को सजा देता है, कोई स्कूल के बच्चों को सजा देता है। हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, आप जो चाहे सजा दें मुझे। अगर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं, अगर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं। हमको इतिहास बताता है कि हर दौर खुजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं, एक बादल किसी कोने से उभरता है कहीं और सहरा पे बरस जाता है, नंगे पेड़ों की किसी शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है, यूं ही हर सिमत से आती है सदा, वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से, और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे, नगमा हर कैद से आज़ाद बिखर जाता है, नगमा हर कैद से आज़ाद बिखर जाता है। बहुत बढ़िया, आदाब, बेहद शुक्रिया। अभी तो आपने कुछ किसानों पर भी लिखा है। जी, किसानों वाली सुना देता हूँ नज्म। ये किसान जब दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे थे उसके कुछ ही दिन बाद लिखी गई नज्म है, और मेरे ख्याल में आज भी वो साबित उतर रही है। जो कुछ बॉर्डर के ऊपर हो रहा है उसे देखते हुए, जो सारे मुल्क को बहुत उम्मीद बंधा रहा है, हमारे जैसे आंदोलन जीवी तो जाहिर है कि इसका इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्क में बहुत ज़्यादा देर तक अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। नज़्म किसान। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तुमको से रुकते नहीं। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तुमको से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियां पांव की तोड़ कर आए हैं, सौंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे, और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले भी ताजिर कई आए थे, तुमसे पहले भी रहजन कई आए थे, जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी।
उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमने सोचा कि तुम आज भगवान हो। तुमको किसने दिया था ये हक खून से? सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई, गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है। गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है वही देवता वही भगवान है और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है। सर बकफ अपने हाथों में परचम लिए सारी तहजीब बेइंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। जालिमो जान लो, तानाशाहो सुनो, अपनी किस्मत लिखेगा वो सड़कों पे अब। काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में आने वाले जमाने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं और सैलाब तिनकों से थमते नहीं। बहुत मौजूद और बिल्कुल ज़मीन की आवाज़ आपने उठाई। मैं सामीन से ये कहना चाहूँगी कि कोई अगर ये सोच रहा हो कि गौहर साहब की ज़ुबान तो आज खुली है, आज के ही हालात पर ये उस बाकियों में ये चुप रहे होंगे, तो पता नहीं इनकी पॉलिटिकल अलायंसेस क्या है। तो मैं साफ कर दूं कि ये हर दौर में इस तरह की चीज़ें लिखते रहे हैं। सिर्फ आज की सत्ता से ये नहीं टकरा रहे हैं, ये पहले की भी सत्ताओं से टकराते ही रहे हैं, पहले भी, चाहे जिस भी तरह का निज़ाम हो। लेकिन अगर उसमें जनता के खिलाफ कोई बात है तो हर दौर में इन्होंने उसको ललकारा है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये आज के ही लोगों के पीछे पड़ गए हैं और कोई पॉलिटिकल इनकी ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं, ऐसी इनकी वादे हैं कि सिर्फ आज ये हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, पहले तो ये बहुत जुल्म होने पर भी चुप रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अगर आपको एतराज ना हो गौहर साहब, कि जो मैंने कोट किया था थोड़ा सा हाकिम वक्त का ऐलान, फरमाने जुनू, फरमाने जुनू टाइप की मुझे तो बहुत बीमारी है चीजें भूलने की, शब्द भूलने की। तो ये वाली आप अपनी नज्म अगर पेश करके फिर कुछ और अपने मन से और नज्में करें। वो मैंने WTO के ऊपर लिखी थी। और किस सन में लिखी थी याद हो? हाँ, मैं तलाश कर रहा हूँ उसको। तब से ही जब से आपने हुक्म दिया है वो किताब के पेजेस में मिल नहीं पा रही है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। शहरे खामोशा, ये आशीष मेहदी साहब बता रहे हैं नया लिबास वाली नज्म पढ़ दें। एक फरमाइश आई है, नया लिबास वाली नज्म पढ़ दें। मैं नया लिबास पढ़ देता हूँ। और आपके सामने और भी आ रही होंगी, कमेंट्स आ रहे हैं, आप जरा खुद भी देख पा रहे हैं या नहीं गौहर जी? मैं कमेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कोई वजह है कि कमेंट्स मेरे पास वो प्राइवेट चैट जैसा कुछ हो गया है, तो मुझे कमेंट्स हाँ, वो कमेंट्स आपके पास आ रहे होंगे या फेसबुक के ऊपर आ रहे होंगे? जी आ तो रहे हैं, और हम लोग ये समझते थे कि आप भी देख पाएंगे उसको जी। तो ये नया लिबास वाली की फरमाइश आई है और एक मेरी तरफ से फरमाइश हुई है। लाइव व्यूअर्स कमेंट शो अप इन स्ट्रीम यार्ड। हाँ, अब मेरे पास आ रहे हैं जो स्ट्रीम यार्ड पर हैं कमेंट्स, वो मैं अब देख पा रहा हूँ। मैं उन सारे ही दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने
पसंद किया है और तारीफ़ें लिखी हैं। मैं आशीष जी ने ख़ास तौर से नया लिबास की फरमाइश की है, मैं ज़रूर सुना देता हूँ। नया लिबास। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। जो बस्तियों को जलाते रहे हो बरसों से, उन्हीं की राख है अब तक तुम्हारे चेहरे पर। सदाएं बच्चों की आती थी जब अंधेरों में, तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे। घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार तुम्हारे दिल को सुकून बख्शती रही अब तक। धर्म शराब था, बांटा गया, नशा भी हुआ, और इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुमने। हर एक फूल से, रंगों से तुमको नफरत है, न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे, फसल खड़ी है तो अब काटने को आए हो। फरेब और झूठ की बैसाखियों पे चलते रहे, और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, यही है मुल्क की खिदमत, यही वतन से है प्यार। तुम्हारे कदमों की आहट से दिल दहलता था, तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वहशियाना है। ये भूल जाएं और अब सब तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे हाथों के खंजर, छुपे हुए त्रिशूल, चमकते भालों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। दहकते शोलों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे साथ चलें और तुमको मौका दें। क्या वो खून से, आंसू से दिल नहीं बहला, वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी। बहुत करीब हो तुम तख्त ताज से माना, मगर जो राख है हिटलर की नर्क जाती है। वो नर्क जिसका जवा जिस्म ही तो ईंधन है, वो नर्क जिसमें मोहब्बत चिता पे रोती है। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं, वही करोगे जो नस्लों के मानने वाले, वही करोगे जो नफरत के पूजने वाले तमाम मुल्कों में करते रहे हैं आज तलक। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका मिले। मैं सारे रंगों को, फूलों को, सारे बच्चों को, मैं सारे खून के कतरों को कैसे धोखा दूं। लिबास कोई भी हो, लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है। लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, ये ज़हन, सोच, तरीके छुपा नहीं सकता। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। एक साहब हैं जिनके बारे में मशहूर है, दिन में 4 बार लिबास बदलते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में ये मशहूर है कि उसने हाफ पैंट से अब फुल पैंट पहनना शुरू कर दिया है, लिबास बदलने की कोशिश। ऐसा है, कुछ का पता है और बहुत सारे बिना डिक्लेयर किए हुए कर रहे हैं। खोजेंगे तो मिलेंगे, और भी एग्जाम्पल मिलेंगे बहुत सारे। एक बड़ी पुरानी नज्म है, जैसा आपने कहा ना कि हर दौर में लिखता रहा हूँ। ये बिल्कुल शुरुआती दौर की नज्म है जब मैंने लिखना शुरू किया था, और ये पंजाब के में उस वक्त बहुत खून खराबा था। पंजाब का जो टेररिज्म था वो अपनी उरूज पर था। वहाँ सिख और हिंदू में डिवाइड करने की कोशिश थी पूरी तरह से। वो दौर बच्चों ने ज़्यादातर नहीं देखा है। ये नज्म अकेली नज्म थी उस ज़माने में जो पंजाब केसरी में छपी थी। मैं भेजा नहीं करता था, लेकिन उस वक्त इतना दिल में दर्द था कि ये नज्म मैंने भेजी थी। पंजाब का सीना छलनी है, बहुत पुरानी नज्म है, इसलिए सुना रहा हूँ। आज के दौर में ये प्रासंगिक नहीं है, पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो
नज़्म में मैंने कहा था कि इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे, वो हो नहीं पा रहा है, धुल नहीं पा रहा है। पंजाब का सीना छलनी है, फिर खंजर चलने वाला है, फिर खून गिरेगा सड़कों पर, फिर दिल टुकड़े हो जाएगा। जिन दो हाथों ने सदियों तक इस जिस्म की अनथक खिदमत की, उन दो हाथों में खंजर हैं खुद जिस्म के टुकड़े करने को। मत भूलो इससे पहले भी एक वक्त पड़ा जो भारी था, कुछ जख्म लगे जो कारी थे। मत भूलो अब भी हर एक सर उस गलती पर झुक जाता है जो इन दो हाथों ने की थी। तारीख का वो तारीख सफा पलटो देखो और हिफ्ज करो, ये तुमको अपने दामन पर कुछ धब्बे याद दिलाएगा। रुक जाओ, सोचो, गौर करो, क्या हासिल है इस वक्त का। जो खून गिरेगा धरती पर वो एक धब्बा कहलाएगा, और आने वाली नस्लें भी इस धब्बे पर शर्माएंगी, और आने वाली नस्लें भी इस धब्बे पर शर्माएंगी। बहुत अच्छा। मैं लगातार इस तरह की नज़में लिखता रहा हूँ। शुरुआती नज़मों की इसी तरह से हुई है। वो आपको मेरी वाली नहीं मिली ना, मेरी फरमाइश वाली? हाँ, वो मैं अभी भी लग ही रहा हूँ पेजेस। आपकी तो मैंने जो मार्क करके नहीं लगी रखी, आपने पहले कहा होता तो मैं मार्क करके रख लेता। आपकी पहली वाली जो कविता का संग्रह है उसमें है, जो आप जी 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 उसमें है। एक नज़्म है जो मुझे खुद पसंद है बहुत, वो मैं सुना देता हूँ। जी। जो सोवियत यूनियन के गिरने के बाद लिखी थी। अब वो कई हालात पे हम उस नज़्म को याद कर सकते हैं और मुझे अक्सर याद आती है। हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बहार आएगी। इसका उन्वान है बहार लौट आएगी। हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बहार आएगी। खुदा है चंद रोज की बहार लौट आएगी। बहार वो कि जिसकी धुन में मजनुओं ने बेखतर नई हदों को छू लिया। बहार वो कि जिसकी धुन में मजनुओं ने बेखतर नई हदों को छू लिया। बहार वो कि जिसको रहबरों ने पाके खो दिया। बहार वो कि जिसको रहजनों के हाथ बेचकर खिजा खरीद लाए थे। ये रहजनों की रहजनी तो संगे मील राख है, जो जिंदगी की मोहनी से अब भी तुझको चाह है। उठा रबाब अहद कर, उठा रबाब अहद कर, मैं जिंदगी की शान में फिर कसीदे गाऊंगा, मैं फिर से लौ लगाऊंगा, मैं फिर से दिल जलाऊंगा। करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन। करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन। मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा। मैं वर्किंग क्लास को मेहनतों का देवता ही मानता हूँ। मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा। समेट ले वजूद को समेट कर, तू अपनी चुप को तोड़ दे। फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां आता। कुरान में ये आया है कि खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, लफ्ज कुन कहा, कुन फयकुन, और सब कुछ हो गया। मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा। समेट ले वजूद को समेट कर, तू अपनी चुप को तोड़ दे। फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां अता, वही समर हो फिर अता। समर कहते हैं फल को, जो आदम ने खाया था और उसके बाद हम सब धरती पर आज तक उसे भुगत रहे हैं। वो जो सिन उन्होंने किया था, वो जो पाप किया था। मैं मेहनतों के देवता तो फिर कहूंगा या खुदा। समेट ले वजूद को समेट कर, तू अपनी चुप को तोड़ दे। फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां आता, वही समर हो फिर आता, कि जिसको चख के कह सकूं मुझे जहान चाहिए। जहान वो
कि जिसमें मुझको जुर्रते गुनाह हो, जहान वो कि जिसमें मुझको जुर्रते गुनाह हो। ये स्वर्ग नर्क साथ हैं, शराब ही शराब हैं, जो चंद एक हैं इधर, उधर तो लाखों लाख हैं। मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए, मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए। लाजवाब, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर, एक सपना है देश के लिए। बहुत अच्छा। बिल्कुल। और हमारा जो साम्राज्यवादी समाज होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, उसमें हमें बिल्कुल आसपास ही दिखाई देते हैं स्वर्ग नर्क बने हुए। अंबानी अपनी बीवी को जेट प्रेजेंट करते हैं, इसी समाज के अंदर बर्थडे के दिन जिस समाज में मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर सड़क के ऊपर धूप और गर्मी में चल के अपने घर की तरफ जाना पड़ता है, भूख और प्यास में, तो ये तो स्वर्ग नर्क साथ ही हैं। ऐसे जहान की मुझे तो जरूरत है नहीं, अगर कुछ भक्तों को जरूरत हो तो जरूर वो जी, वैसा और इसी गैर बराबरी के खिलाफ पूरा संघर्ष है जी कि हर एक को बराबर सहूलियतें, कम से कम जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी की सहूलियत मिले, यही पूरी लड़ाई है। जी, एक अपने सारे दोस्तों के नाम है, जी, आप जैसे संघर्ष करने वालों के नाम है नज्म। हम लोग उस तरह से हैं जो समंदर में पानी की तरह मिल जाते हैं, तो हम जैसे आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री जैसे लोगों को दिखाई भी नहीं देते हैं, उनको सिर्फ महसूस होते हैं ये। तो कुल का मतलब होता है टोटल, यानी अगर पानी पूरा हो तो उसमें एक बूंद नहीं दिखाई देती, यानी हिस्सा नहीं दिखाई देता, और उर्दू में हिस्से के लिए शब्द होता है जुज। ये दो शब्द थोड़े से मुश्किल हैं जो इस नज्म में हैं। बाकी ये नज्म अपने सारे दोस्तों के नाम। वो चाहते हैं रोशनी के सब चिराग गुल करें, वो चाहते हैं जिंदगी हो जुल्मतों की कैद में, वो चाहते हैं फिक्र की हर एक राह रोक दें, वो चाहते हैं सब चले जहालतों के दौर में, वो चाहते हैं हर खुशी मुसीबतों में कैद हो, वो चाहते हैं हर तरफ कदूरतों का दौर हो, वो चाहते हैं जिंदगी पे बंदिशें लगी हो, वो चाहते हैं हर बशर को बंदिशों की कैद, हर एक फूल की कबा लहू से दाग दाग हो, खिजा के दाम में घिरी लहू लहू बहार हो, जुनून ही जुनून हो, कतार दर कतार हो। मगर ये कौन लोग हैं, मगर ये कौन लोग हैं चिराग नौ लिए हुए, हर एक महल की ओट में, हर एक गली के मोड़ पर, कहीं पे बन के शाख गुल, कहीं पे बन के संग राह, कहीं पे घास की तरह, कहीं पे रेत की तरह, कहीं पे लहरे आब हैं, कहीं पे मस्ती सबा, कहीं पे मैं कशीद हैं, कहीं पे जामे जावेदा। ये जो भी हैं अजीब हैं, ये जो भी हैं अजीब हैं, मिटाए मिट न पाएंगे। ये कुल भी हैं, ये जुज भी हैं, तुम्हें नजर न आएंगे। ये जिद में हैं कि रोशनी का हर चिराग जल उठे, ये जिद पे हैं कि रोशनी का हर चिराग जल उठे, ये जिद पे हैं कि जिंदगी में रोशनी बिखेर दें। ये जो भी हैं अजीब हैं, मिटाए मिट न पाएंगे। ये कुल भी हैं, ये जुज भी हैं, तुम्हें नजर न आएंगे, तुम्हें नजर न आएंगे। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, वो नज्म आज कहीं खो गई, क्या हुआ? हाँ, वो वाली नज्म तलाश कर रहा हूँ, इतनी देर से मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ और तलाश भी करता जा रहा हूँ, अच्छा, और कोई वो बात, मिल भी रही।
मुझे नहीं, वो उसका शीर्षक मुझे याद नहीं रहा। हम लोगों ने वो जो पोस्टर बनाया हुआ है उसके एक हिस्से पे, तो वो याद है। फरमाने जुनून वाला जो लाल वाला बड़ा वाला पोस्टर। एक फरमाइश है जी। एक श्रोता की कि कोई गजल अपनी सुनाए आप। की गजलें मैंने बहुत कम देखी हैं, नज़्में ज्यादा देखी हैं, तो हाँ, मैं गजलें कम ही लिखता हूँ, लेकिन गजल सुना देता हूँ जरूर अच्छा, एक आपको। आपकी और गलत सवाल, ये बहुत पुरानी है आपकी, बहुत पहले की। गलत जी। सवाल पूछ के गलत जवाब पाओगे, अगर पता नहीं वो भी मिले या ना मिले आपको, तो हाँ, ये वो गजल के बाद आप दे सकते हो। अगर मुझे पहले से ये मालूम होता तो ये फरमाइशें आएंगी तो मैं निकाल के रखता अब उनको। ये गलती हो गई मुझसे, आगे से आगे कभी। मैं एक और नज्म सुनाता हूँ, उसके बाद गजल ढूंढ के सुनाता हूँ आपको। जी। अफगानिस्तान के ऊपर लिखी थी। वहाँ अ, मेरी तो नहीं, शबनम की दोस्त थी एक, जो वहाँ काम कर रही थी, और अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने उन्हें एक दिन उसी में भून डाला था। तो उन हालात में भी, जिन हालात से अफगानिस्तान गुजरा था, और जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि इसकी कोई, भगवान की तरफ से तो कोई वजह नहीं है कि हमारे देश में वो नहीं हो सकता जो और दूसरे देशों में हुआ है। पर ये नज्म उस वक्त लिखी थी मैंने अफगानिस्तान के तालिबान को एड्रेस करते हुए, अपने दोस्तों को एड्रेस करते हुए। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, जैसे महशर प्रलय को कहते हैं, जैसे इसमें पिदर लफ्ज है, वो बेटे के लिए इस्तेमाल होता है। आ, आ, मरदूद हरम, जो हरम से निकाले हुए लोग होते हैं, उनके लिए कहा जाता है। आ, तो उस तरह की इमेजरीज हैं इसमें। मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगी अगर इसका परिप्रेक्ष्य ये आप देखें कि वो अफगानिस्तान था। जब मेरे वतन की गर टूट गए तो हार गए, जब मेरे वतन की गलियों में जुल्मत ने पंख पसारे थे और रात के काले बादल ने हर शहर में डेरा डाला था, जब बस्ती बस्ती दहक उठी, यूं लगता था सब राख हुआ, यूं लगता था महशर है बपा, और रात के जालिम साये से बचने का कोई यारा भी न था, और रात के जालिम साये से बचने का कोई यारा भी न था। सदियों में तराशा था जिसको इंसान के अनथक हाथों ने, तहजीब के उस गहवारे में हर फूल दहकता शोला था। जब नाम खुदा ईंधन की तरह भट्टी में जलाया जाने लगा, जब नाम खुदा ईंधन की तरह भट्टी में जलाया जाने लगा, और नेक खुदा के काबे से मरदूद हरम ठहराए गए, जब खून की होली रस्म बनी और मक्तल गाहें आम हुई, बर्बरियत वहशन फन ठहरी, बर्बरियत वहशत फन ठहरी, इस फन की बज़्में आम हुई, जब शौहर बेटे भाई पिदर सब नाम खुदा के काम आए, आवाज थी एक इंसान की भी, आवाज थी एक इंसान की भी, इस शोर के बीहड़ जंगल में वो मिटने को तैयार न थी, जो जहनों को गरमाती रही, जो छलनी जिस्म से कहती रही, उठ हाथ बढ़ा, हाथों को पकड़, लाखों हैं यहाँ तेरे जैसे, इस जंग को जारी रखना है, गर टूट गए तो हार गए, गर टूट गए तो हार गए। बहुत अच्छे।
تو اس جنگ میں بہت ساری قربانیاں ہیں جو ہم دیتے رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ دیتے رہے ہیں، صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ اور جگہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور بنا قربانی کے شاید وہ صبح تو نہیں آ پائے گی جس صبح کی خاطر مر مر کر ہم صدیوں سے جیتے ہیں۔ گوہر صاحب امید تو نہیں چھوڑیں گے جی مرتے دم تک، اور ہمارے وقت نہیں تو آگے آئے گی ضرور۔ جو سپنا دیش نے دیکھا تھا آزادی کے وقت، وہ ہم نہ دیکھ پائے پر آگے کی نسلیں دیکھیں گی، کیونکہ ایک سا کبھی نہیں رہتا، ضرور آئے گی وہ صبح۔ بالکل یہی امید ہے۔ نا امید ہاں نہیں رہے گے۔ ہاں، شہر خاموش کشکول، میں نے غزلیں بہت کم لکھی ہیں۔ غزل میری زمین نہیں ہے، کبھی کبھی غزل ہوتی، اور وہ غزل ہی تھی جس نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، غم میں لپٹی وطن پرستی میں۔ نظموں نے تو اتنا پریشانی میں نہیں ڈالا، غزل نے ضرور ڈال دیا مجھ کو۔ اچھا ہے، کم لکھتے ہیں۔ کچھ شعر ہیں غزل کے، یہ تھوڑی سی لمبی غزل ہے، اس میں سے کچھ شعر میں آپ کو جی سنا دیتا ہوں۔ انہیں جنون کسی بزم میں امان نہ رہے، انہیں جنون کسی بزم میں امان نہ رہے، کوئی رہے نہ رہے بزم میں کشان نہ رہے، انہیں جنون کے رشتوں کو توڑ ڈالیں سب، انہیں جنون کے رشتوں کو توڑ ڈالیں سب، ہمیں یہ فکر کوئی بھی خفا خفا نہ رہے، انہیں جنون کے دل پاش پاش ہو جائیں، انہیں جنون کے دل پاش پاش ہو جائیں، ہمیں یہ فکر کوئی زخم بے دوا نہ رہے، انہیں جنون کے ہر شام شام غم میں ڈھلے، ہمیں یہ فکر کہ دل شام سے بجھا نہ رہے، انہیں جنون کے دنیا سہم سہم کے جیے، ہمیں یہ فکر کوئی بھی سزا جزا نہ رہے، انہیں جنون کے ہر شہر شہر آتش ہو، ہمیں یہ فکر کے عالم سجا سجا سا رہے، انہیں جنون کہ کوئی بھی سر بلند نہ ہو، ہمیں یہ فکر کوئی سر جھکا جھکا نہ رہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت شعر تو بہت اچھا ہے۔ بے حد شکریہ، آداب۔ ایک اور غزل ہے، اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ سارے مذاہب صدیوں پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، سارے مذاہب صدیوں پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، پھر کیوں ان کے ماننے والے بدلے بدلے لگتے ہیں، واہ بہت اچھا، کیا بات۔ پھر کیوں ان کے ماننے والے بدلے بدلے لگتے ہیں، وحشت کا بازار گرم ہے دیکھ کے وحشت اور بڑھی، تشت جنوں پہچاننے والے بدلے بدلے لگتے ہیں، پر غزل میری زمین ہے نہیں۔ جی جی، اس کے باوجود جو آپ نے پڑھا وہ بہت ہی خوبصورت اور معنی خیز ہے، بہت ارتھوان ہے۔ تو اب میں اپنی بات کو بدل کر کے کہوں گی کہ لکھا کریے بھائی، انسیف ہو تو بھی لکھا کریے، ہاں، خطرہ تو ویسے بھی لے ہے، تو لکھا کریے یہ ایک بیٹیوں کے لیے ہے ناظم، ضرور۔ تو یہ تھوڑا الگ ہے، تو بیٹیوں کے لیے ایک دعا ہے میری، یہ دعا بھی تھوڑی چونکانے والی تھی، جب میں نے خود لکھی تو میں بھی تھوڑا چونک گیا تھا کہ کیا یہ لکھا جا سکتا ہے۔ کاش یہ بیٹیاں بگڑ جائیں، کاش یہ بیٹیاں بگڑ جائیں،
इतना बिगड़े कि ये बिफर जाएं, उन पे बिफरें जो तीर और तीशा लिए राह में बुन रहे हैं दारो रसन, और हर आजमाइश दारो रसन इनको रस्ते की धूल लगने लगे। काश ऐसा हो अपने चेहरे से आंचलों को झटक के सबसे कहें, जुल्म की हद जो तुमने खींची थी उसको पीछे कभी का छोड़ चुके। काश चेहरे से खौफ का ये हिजाब यक बयक इस कदर इस तरह पिघल जाए, तमा उठे ये रुखे रोशन, दिल का हर तार टूटने सा लगे। काश ऐसा हो सहमी आंखों में कहर की बिजलियां कड़क उठे, और मांगे ये सारी दुनिया से एक एक करके हर गुनाह का हिसाब, और मांगे ये सारी दुनिया से एक एक करके हर गुनाह का हिसाब, वो गुनाह जो कभी किए ही नहीं और उनका भी जो जरूरी है, वो गुनाह जो कभी किए ही नहीं और उनका जो जरूरी है। काश ऐसा हो मेरे दिल की कसक इनके नाजुक लबों से फूट पड़े, काश ऐसा हो मेरे दिल की कसक इनके नाजुक लबों से फूट पड़े। बहुत अच्छा। तो मैं तो ऐसी ही दुआ कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत बढ़िया। और जरूरत कैसी दुआओं की है। जी लोग अपना वजूद बनाए और जो गलत बंदिशें जहाँ भी हैं, चाहे वो गरीब मर्द की हो, औरत की हो, और अगर उसे बिगड़ना किसी भी कहा जाता है तो फिर बिगड़ना ही बेहतर है। देखिए ये बेटी बिगड़ना बिगड़ गई। शब्द, आपका ये बिगड़ना शब्द अंडर कोट्स है, ये सुनने बिल्कुल। वाले समझ रहे होंगे कि जिसको दुनिया बिगड़ना कहती है बिल्कुल उस पर आपने है तो वो बात। और बहुत सारी लड़कियों लेडीज ने भी लिखी है इस तरह की। आपकी तो खैर शब्दों में जादूगर हैं आप, लेकिन बहुत सी कविताएं इस बात पे निकली हैं कि लड़कियां जो समाज की नज़र में बिगड़ना जिसको कहा जाता है, तो काश वो बंदिशें तोड़ के बिगड़ जाएं। ऐसी कई चीजें आई हैं सामने कुछ वक्त पहले। तो अभी तो कुछ कोई और सुनने वाले लोग कोई फरमाइश करना चाहें या कुछ पूछना चाहें गौहर साहब से, कोई सवाल तो नहीं आया है अभी सामने, लेकिन अगर कोई तारीफें आ रही हैं। हाँ तारीफें काफ़ी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को पसंद आई हैं ये बातें, ये नज़में पसंद आई हैं। गौहर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मेरे असल में आपकी उस कविता का जिसका कि मैं आपसे अगर मांग आपके करती सामने रही, है तो आप पढ़ें ना उसे। नहीं वो नहीं पूरी नहीं है वो, असल में हम लोगों ने उसके हिस्से में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पोस्टर बनाया था, आपको याद होगा, आप आए तो हैं हमारे जो दफ्तर इस्तेमाल में। के काबिल है वही पढ़ें। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। बिल्कुल एंट्री पे प्रवेश पर ही एक बड़ा सा लाल पोस्टर लगाया था जिसमें आपकी इस नज़्म का एक हिस्सा जी में एक आध हरूफों का कुछ इधर उधर हुआ है। नहीं आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। क्योंकि उसमें एक अहद है, तो मुझे लगता है कि वो जाना शायद आज के वक्त में भी और उसके पहले वक्त में भी हमेशा ये चैलेंजेस रहे हैं, जनता बनाम सरकार तो हमेशा ही किसी ना किसी तरह रहे हैं, बहुत खराब कम खराब, लेकिन मुझे शुरू की याद है लाइनें वो इस तरह से हैं, याद नहीं है नज़्म कि हाकिमे वक्त का फरमाने जुनू फिर से सुनो, ये बात सही है न पुरानी होगी, फिर वही बिकने ठिकाने की कहानी होगी, जो भी कुछ पास से सब बेच दो नीलाम करो, इज्जत और गैरत सब कुछ। पूरी याद नहीं है मुझे। जी बिल्कुल यही है, थोड़ा सा मैं जो एक आप हिस्सा जरूर पढ़ें। हाकिमे वक्त का फरमाने जुनू फिर से सुनो, न तो ये बात नई है न पुरानी होगी, फिर वही बिकने बिकाने की बात होगी, फिर वही बिकने बिकाने की कहानी होगी, जो भी कुछ पास है सब बेच दो नीलाम करो,
जिस्म जां, इज्जत व गैरत सब हंसते हुए कातिल के हाथ धरो। आओ कह दें कि ये सौदा हमें मंजूर नहीं, 100 बार नहीं। ये सौदा हमें मंजूर नहीं, आपने लिखा था 100 बार नहीं, शायद अब जोड़ना पड़ेगा 1000 बार नहीं। शायद ये क्योंकि में ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति, समय बदला है, हमारे समाज की जटिलता बढ़ी है, हमारे भटकाव भी बढ़े हैं, हमारे लिए ज्यादा कठिन भूल भुलैया तैयार हो गई हैं समाज की बनावट में। बिल्कुल। तो हमारे भटकने की संभावनाएं आज ज्यादा हैं। सही बातों को ना समझने वाली मजबूरियां हमारी बढ़ी हैं आज के दौर में, और कुछ नारों के आधार पे एक दूसरे से भद्दी बातें कहने की जो तत्परता है, जो क्या नाम तेजी है, वो आज बढ़ी है, जो हमें हर सोशल मीडिया पर मिलती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग समझ पा रहे हैं इस पूरी चीज़ को कि हम कैसे इंसान से जानवर बनने की जो प्रोसेस है उसमें अब जा चुके हैं, हम इंसान से जानवर बनने की एक ढलान पर उतर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए हम फिर उस चढ़ाई पर चढ़ें जिसमें कि हम जानवर से इंसान बने थे हजारों सालों में। आपकी नज़मों का मुझे लगता है कि कहीं यही संदेश है जिसे मैं दोहराना चाहती हूँ। और इसके साथ क्या जो श्रोतागण हैं उनमें से कोई को एतराज़ होगा अगर हम अब इसे ख़त्म करें? आप कुछ और बात बढ़ाना चाहते हैं? यहाँ बैठे लोग या जो लोग सुन रहे हैं, कोई अगर बताएं किसी को अभी चलाने की इच्छा हो या उसको। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग सुनने के लिए साथ आए। हम लोगों का फेसबुक लाइव का पहला प्रयास था, ये पहली कोशिश थी, और गौहर साहब को तो अब हम साहब भी इनके नाम के आगे से हटा के, हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, काम में हमसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको गौहर साहब कहने की पता नहीं कहाँ से इजाजत मिली। नहीं, अब वो हमने खुद ही वापस मुझे हर बार शर्मिंदगी होती है जब आप साहब का इस्तेमाल करती हैं। तो आपको हम शुक्रिया तो पहले दी है, लेकिन आप क्या दें शुक्रिया। हम पूरी साझी दुनिया टीम की तरफ से, हमसे भी थोड़ा बुजुर्ग हमारी संस्था में है, बुजुर्ग तो नहीं लेकिन हमसे सीनियर पद में है हमारी संस्था में, उन सब की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आप जी। आप उनसे कोई कुछ जी, कोई कुछ कह रहा है? तो आपको हम बहुत इस बात को के लिए हमें बहुत कहना चाहिए, आभारी तो हैं कि आप जुड़े हम लोगों से, आगे भी जुड़ते रहे हैं। पहले भी आपने कभी हमारी गुजारिश को टाला नहीं, आपने हमें नए उत्साह से भरा है, नई उम्मीदें दिलाई हैं, और जितने लोग सुनने के लिए आए उन सब के हम आभारी हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े, आगे भी इसी तरह सहयोग देते रहिए। हम अपनी ताकत के हिसाब से अच्छे प्रोग्राम आपके सामने लाना चाहेंगे, अब लगातार हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, नमस्ते, गुड इवनिंग, सबको सलाम, आदाब।